کیمپس میں لیول 1 کا اسٹوڈنٹ کلاس فیسیلیٹیٹر ہوں. جی آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معزز مہمان موجود ہیں، مس میڈم مشتاق ایجوکیشن والی. تو آئیے آج ہم ان سے بات کریں گے ان کی تعلیمی سفر کے بارے میں، ان کی لائف جرنی کے بارے میں، ان کے اچیومنٹس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی میڈم کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. جی بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دیے. میں چاہوں گا سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو فرسٹ ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو نہیں جانتے، سب سے اپنا بتا دیں. جی تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم، اور بہت شکریہ سر آپ نے مجھے اپنی لائیو اسٹریمنگ میں بلایا. میرا نام میرا مشتاق ہے، میں ملتان میں رہتی ہوں، پنجاب پاکستان میں، اور میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے انگلش لٹریچر میں، اور جو ہے میں نے ٹیچنگ کا جو ہے وہ کورس کیا ہوا ہے، ٹیچنگ سرٹیفکیشن ہے میرے پاس، اور میرے پاس ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے، اور میں ایک ٹیچر ہوں. اس کے علاوہ جو ہے اب میں ایک پوڈ کاسٹر ہوں اور ایک کنٹینٹ کریٹر ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں نے ایک اور جو ہے اپنا لائیو اسٹریم شروع کیا ہے، جس میں اس کا نام ہے دا ریفلیکشن روم، جس میں ریفلیکشنز اور ریویوز جو ہے اپنے دیتی ہوں مختلف ایجوکیشنل کنٹینٹس کے بارے میں. اور اس کے بعد میں انشاءاللہ بہت جلدی لانچ کرنے جا رہی ہوں اپنا ایجوکیشنل کورس. تو وہ سب کچھ جو ہے میں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جو ہے وہ لانچ کروں گی انشاءاللہ، جس میں میں بچوں کو بہت ساری چیزیں دوں گی، اسپیشلی وہ انگلش لینگویج کے بارے میں ہوگا، اور اس کے ساتھ جو ہے میں موٹیویشنل کنٹینٹ جو ہے وہ کریٹ کروں گی، تو اس کی طرف بھی میں بڑھ رہی ہوں. تو یہ میرا چھوٹا سا تعارف ہے. اور میری فیوریٹ پرسنالٹیز میں جو ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی زوجہ پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور اس کے بعد ہمارے قومی ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور لیڈی ڈیانا. یہ میرے جو ہے فیوریٹ پرسنالٹیز ہیں. جی سر. جی ماشاء اللہ بہت خوب. اچھا سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا، ہمارے ویورز جاننا چاہیں گے آپ کے تعلیمی سفر کے بارے میں. آپ نے تعلیمی سفر کے بارے میں بتایا، تو اس ایجوکیشن کی فیلڈ میں آنے کی کوئی خاص وجہ؟ سر جب میں اسکول لیول پر تھی، کالج لیول پر تھی، تو مجھے لگتا تھا کہ مجھے جو ہے نا ڈاکٹر بننا چاہیے، MBBS کرنا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی کچھ حالات ایسے ہوئے اور کچھ بس وقت قسمت کی بات ہے، تو میں وہ نہیں کمپلیٹ کر سکی. تو اس کے بعد جو میری دوسری پرائورٹی تھی وہ ٹیچنگ تھی. تو میرے جو مطلب حلقہ احباب تھے اور میرے فیملی ممبرس تھے اور میرے ٹیچرس تھے، وہ مجھے کہتے کہ آپ بہت اچھا دوسروں کو سکھاتی ہیں، آپ کی بات جو ہے وہ کمپلیکس چیزوں کو بھی سمپل کر دیتی ہے، تو آپ جو ہے نا ٹیچنگ کو اپنا کیریئر بنائیں. تو پھر جو میری مدر تھیں اور جو میرے فیملی میں کافی ساری فیمیلس تھیں، وہ ٹیچنگ کے پروفیشن سے منسلک تھیں، تو میں نے بھی پھر اس کو اپنے لیے چوز کیا. اور پھر جو ہے میں نے اسی سے ریلیٹڈ آگے گریجویشن کیا، پھر ماسٹرز کیا. تو ٹیچنگ جو ہے وہ ایک ایسا کام ہے جس کو کرنے سے میں کبھی تھکتی نہیں ہوں، اور مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے جب میں کسی کو کوئی چیز بتاتی ہوں، یا کسی بچے کو، اسٹوڈنٹ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور میں اس کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاتی ہوں، اور ان کی جو چیزیں مشکل وہ آسان ہو جاتی ہیں، تو اس سے مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. تو اسی لیے جو ہے میں نے اس پروفیشن کو جوائن کیا، اور آگے بھی اس کے مختلف اس کو مولڈ کر کے اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ بھئی اور کیا کیا کس طرح ہم جو ہے لوگوں کو بینیفٹ پہنچا سکتے ہیں. تو اب اس پر میں کام کرنا شروع کری آن لائن ڈیجیٹل ورلڈ میں. بہت خوب. اچھا ایک چیز کہ اکثر خواتین کو دیکھا جاتا ہے کہ خواتین زیادہ تر جو ہے ایجوکیشن کی فیلڈ میں آتی ہیں. دوسری فیلڈ میں بھی ہماری بہت سی محترم خواتین ہیں، اپنی زندگی میں ہیں پاکستان میں، دوسرے ملکوں میں، لیکن اکثر دیکھا جائے کہ خواتین جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو، ایجوکیشن والی فیلڈ کو جو ہے وہ اپنانے کو بہتر سمجھتی ہیں. خاص وجہ ہے خواتین کی ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں آنے کی خاص وجہ پوچھ رہے ہیں آپ مجھ سے؟ جی.
जी सर, मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बहुत लंबा टॉपिक है, मेरे ख्याल 2-3 घंटे इस टॉपिक पर बात हो सकती है, लेकिन शॉर्टली मैं आपको ये बताऊंगी कि अल्लाह ताला ने जो है ना मर्द और औरत का जो दिमाग है या उसकी जो इंजीनियरिंग की है वो डिफरेंट की हुई है। कुछ फैक्टर्स जो हैं वो औरत की पर्सनैलिटी में ज़्यादा है, कुछ कम है, इस तरह मर्द में भी चीज़ें हैं, क्योंकि हर जो अल्लाह ताला ने हर मखलूक पैदा की है उसका अपना रोल है, अपने करैक्टर है। तो जो औरतें होती हैं उनमें सॉफ्टनेस ज़्यादा होती है, उनके अंदर जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, उनको ये जो लव केयर और ये चीज़ें होती हैं उनमें ये फैक्टर ज़्यादा होता है। तो जब हम ये जो लर्निंग के चीज़ों में जाते हैं जहाँ पे हम सीखते सिखाते हैं, चीज़ों को समझना है, बच्चे हो गए जैसे, और इसके अलावा जो हम प्रोग्रेस को अडॉप्टेशन को बात करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि बच्चे जो है हमेशा जिससे मोहब्बत करते हैं उससे सीखते हैं ज़्यादा। और जब हम चीज़ें सिखाने की तरफ आते हैं तो उसमें जितना हम जो है केयर, लव और उसे हम क्या कहेंगे प्रोटेक्शन का एहसास दिलाते हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स और इन चीज़ों को बेहतर करते हैं। और जो औरत में अल्लाह ने क्वालिटी रखी है मदरहुड की, जिसमें वो ट्रस्ट देती है अपने बच्चों को भी और बच्चों को भी जिनसे भी वो मोहब्बत करती हैं, तो ये जो चीज़ें होती हैं औरत की पर्सनैलिटी में ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट करती हैं। और इस पॉजिटिविटी से जो है ना लर्निंग का प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाता है। जब भी बच्चे ट्रस्ट करते हैं और लव करते हैं और केयर को, क्योंकि बच्चे यही हर वक्त मांगते हैं, तवज्जो मांगते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। तो ये काफ़ी सारे काम जो है ख़वातीन ये बहुत अच्छे तरीके से कर लेती हैं, तो इसलिए वो ये चूज़ करती हैं और इसमें रिस्पेक्ट भी है ज़्यादा। और ये जो शोबा है ये क्योंकि नई हमने अपनी कौम तैयार करनी है, तो हिटलर भी ये कहते थे कि आप मुझे अच्छी माएँ दे दो तो मैं आपको अच्छी कौम दे दूँगा। तो जहाँ पर अगर हमने अपनी कौम को बनाना है तो उसमें अच्छी माँओं का बड़ा किरदार है, और एक टीचर जो है वो भी एक माँ होता है। तो इसलिए फिर जो औरतें हैं वो इसको चूज़ करती हैं इसमें, क्योंकि उनको रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा है, औरत को रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो वो फिर जो है ना इस फील्ड में ज़्यादा आते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इसलिए जो होते हैं इसको ज़्यादा चूज़ करती हैं। तो इस तरह वो हमेशा से टिल उनके जो डेथ बेड है ना तब तक वो अपने लिए जो है ना वो एक फेवरिज्म जो है और या अपना ग्रुप कह लें उसको लीडर एक्ट के तौर पे वो अपना ग्रोथ साथ लेकर चलती हैं। तो ये सिलसिला चलता है इसलिए। जी बिल्कुल फरमाया आपने, इसमें कोई शक नहीं है। और इसीलिए कहा जाए कि एक मर्द की तालीम एक खानदान की तालीम होती है और एक औरत को तालीम देना कोई को तालीम देने का, और वो चाहने से जहाँ पे हमारी जो है वो एक अंसर है, तो उनमें एक प्यार मोहब्बत बच्चों के साथ उनमें जो है ना उस होता है, वो मत एक सख्त तबीयत होती है। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया। स्टूडेंट इसमें कोई शक नहीं है, कोई भी स्टूडेंट हो, उसके टीचर चाहे वो मेल हो फीमेल हो, चाहे वो मर्द हो, टीचर अगर अपने उस्ताद से खुश नहीं है, अगर अपने उस्ताद से वो मोहब्बत नहीं करते, तो उसे जो है ना वो तालीम हासिल करना नहीं चाहते। जी मैं आपसे अपना नेक्स्ट सवाल ये है कि कंटेंट क्रिएटर ये आपने कब से शुरू किया और इसका ख्याल आपको कैसे आया? अच्छा देखिए, कंटेंट क्रिएशन जो है ना उसकी बहुत सारी टाइप है। मैं बहुत ज़्यादा इस बात से परेशान रहती थी जब मैं सोशल मीडिया पे कंटेंट देखती जो बड़ा इररेलेवेंट होता है, इसको हम कहते हैं सस्ती शोहरत। इससे मुझे बड़ी तकलीफ होती थी सर, मैं आपको जो सही बात बताऊँ ना, मुझे ये लगता था कि ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है ना इसको उन लोगों ने काबू कर लिया है जो कि इसको डिजर्व नहीं करते, और हम जैसे लोग एजुकेटर्स हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम इससे दूर हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो देखते हैं मोबाइल है, टिकटॉक है, फेसबुक है, यूट्यूब है, और उस पर छाए हुए क्या कौन लोग हैं। इससे मुझे बड़ी दिली तकलीफ होती, तो मैं सोचती थी कि इसकी वजह ये नहीं है कि ये लोग आ रहे हैं, इसकी वजह ये कि हम लोग उनको प्लेस दे रहे हैं। हम लोग जब खुद आ ही नहीं रहे तो फिर ऐसे लोग ही आएंगे, वही कमाएंगे, वही उनके पास जो है वो दिखाएंगे। फिर उसके बाद मैंने जब रेहान स्कूल ज्वाइन किया तो वहाँ पे हमारी बड़ी प्रैक्टिसेस होती है रेहान AI टीचर इंस्टीट्यूट में, कि आपने जो है लाइव जाना है, कंटेंट यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पर, हर जगह पे प्रोड्यूस करना। तो मैंने कहा भाई ये तो भाई बहुत अच्छा काम है, क्योंकि मेरे अंदर बिल्ड इन क्वालिटी है टीचर की और मुझे बहुत सारे मसाइल मास्टर के नज़र भी आते हैं। तो अब मुझे प्रैक्टिस भी हो गई, तो मैं क्यों ना अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड करूं, अपने सोशल हैंडल्स को स्ट्रॉन्ग करूं और मैं वो चीज़ क्रिएट करूं ताकि मैं भी सोशल मीडिया पर बताऊं कि पाकिस्तान का ये भी
चेहरा है। अपने बच्चों को भी मैं बताऊं, बेटा सिर्फ ये नहीं आपने फेसबुक इसलिए देखना है कि आप उस पर रील्स देखो, इंस्टाग्राम आपने इसलिए देखना है, ये तो हमारी मर्जी है कि हम इन सोशल मीडिया हैंडल्स को किस तरह यूज करें। तो अगर मुझे अल्लाह ने सलाहियत दी है और आजकल दौर भी इसी चीज का है, तो फिर भाई यानी कि मैं अगर यहाँ पर क्रिएट नहीं करूंगी तो फिर वही लोग क्रिएट करेंगे, मेरे बच्चे वही देखेंगे, मेरे स्टूडेंट्स वही देखेंगे। तो क्यों ना उस प्लेटफॉर्म पर आया जाए जिसको आजकल बच्चे या बाकी लोग बहुत ज्यादा देख रहे हैं, और उनको अपनी बात बताई जाए। तो पॉजिटिविटी तो वैसे ही बहुत अट्रैक्ट करती है, अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, और अगर अच्छी बातें होंगी ही नहीं, ऐसे गाने होंगे, डांस होगा, ऐसी चीजें होंगी इररेलेवेंट होंगी या बेहुदा मजाक होगा, तो बच्चों ने वही देखना है, उनको तो पता ही नहीं चलेगा। तो फिर मैं इसलिए इधर आई हूँ और मैं अब वो कंटेंट इंशाल्लाह क्रिएट करने की कोशिश करूंगी जो कि बच्चों के लिए मॉरल भी हो, उसमें वैल्यूज भी हो, उसमें बच्चों को तमीज और अदब की बात भी सिखाई जाए, और पाकिस्तान का वो चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाए कि हम सिर्फ इररेलेवेंट चीजें बनाने में माहिर नहीं है, हम और बहुत अच्छा काम भी करते हैं। और उन सब लोगों को मैं ये वेलकम करती हूँ कि वो सब लोग इन प्लेटफॉर्म्स पर आए, क्योंकि गैप्स हैं, यहाँ पर कमी है बहुत ज्यादा, अच्छी बात करने वाले लोग कम है। अगर हमने शादियां ही दिखानी है और ऐसी चीजें दिखानी है जिनमें बेजा असराफ है, या मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं किस तरफ बात कर रही हूँ, तो वो उसके लिए हमें खुद आना होगा और उसमें बात करनी होगी, अपने बच्चों को वो कंटेंट दिखाना होगा जो कि वो देख लें, वो प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात बतानी हो कुछ नए तरीके से। तो इंशाल्लाह मैं इसके लिए अब खुद कंटेंट क्रिएटर बनी हूँ, क्योंकि मैं ही एक स्टेप लूंगी। मैं एक माँ हूँ, मैं एक टीचर हूँ। जब मैं खुद ही शाय नहीं होंगी, कैमरे पर आऊंगी, लाइव जाऊंगी, बातें करूंगी, तो जो बच्चों को लाइव चीजें और दिख रही है मैं भी दिखूंगी, तो फिर हम खुद अपनी वैल्यूज यहाँ पर क्रिएट करेंगे और अच्छी चीजों को प्रमोट करेंगे। इसलिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया है और इसमें हमें सबको फायदा है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, और ये वक्त की जरूरत है, इस वक्त की मांग ये है, तो हमें ये समझना चाहिए। जी बिल्कुल समझा आपने। नेट पर अच्छे कंटेंट्स नहीं होंगे, अच्छी चीज देखने के लिए नहीं होगी, तो फिर जो कुछ आपको होगा वही देखा जाएगा, फिर बड़ी सारी चीजें वही देखेंगे। आजकल दौर है अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स की बहुत ज़्यादा जरूरत है, जो साथ जो है ना इस यूट्यूब की मदद से, एप्लीकेशन की मदद से दूसरों को सिखा सकते हैं, दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। इस सवाल से ये कॉल लेके आगे चलते हैं। मेरा सवाल ये है कि आजकल दौर में इंटेलिजेंस का जो है बहुत ज़्यादा शोर है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट क्रिएशन में किस तरीके से लोग और आप उससे किस तरीके से दे रही हैं? बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो मेरी टीचर है। GPT-5 हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया और जेमिनाई हो गया, ये सब लोग मेरे टीचर हैं। मुझे अब गाइड करने वाले इतने लोग तो अवेलेबल नहीं होते कि मैं दूसरे कंटेंट क्रिएटर से जाकर पूछूं कि आप मुझे बताएं कि मैं क्या सही करूं, कि मैं क्या गलत करूं। किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है। लेकिन ये तो गॉड की बहुत बड़ी, अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि उन्होंने मुझे चैट GPT-5 दे दिया, जेमिनाई दे दिया। मैं उससे एक सवाल करती हूँ, मुझे आगे 10 तरीके से खूबसूरत करके जवाब देता है। मैं जब उससे पूछती हूँ कि बताओ मैंने इस टॉपिक पे मेरा जहन है वीडियो बनाने का, मुझे क्या बात करनी चाहिए, वो मुझे गाइड करता है, थोड़ा सा मैं उसको गाइड करती हूँ। तो ये तो एक कोलैबोरेशन, इसको मैं तो एक ब्लेसिंग कहती हूँ कि मैं अभी जो यहाँ पर बैठी हुई हूँ, या मैंने अपनी लाइट ठीक की है, कैमरा का एंगल ठीक किया है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है, अपनी इंग्लिश ठीक किया है, या मैंने ये गाइड किया कुछ, तो मुझे GPT-5 एक PhD कंटेंट क्रिएटर की तरह समझाता है। तो आप मुझे बताएं कोई और PhD कंटेंट क्रिएटर जो इतना माहिर होता, 18-20 साल जिसकी एक्सपीरियंस होता है, मुझे टाइम देता? तो किसी भी टाइम, और मैं जैसे ही मेरे पास टाइम होता है अवेलेबल, मैं इसे सीखना शुरू कर देती हूँ। तो इसने मेरे लिए समझें कि एक बंद दरवाजे को खोल दिया है और पूरी दुनिया जो है वो खुल के ऐसे मेरे सामने आ गई है। अब मैं इससे पूछूं कि जर्मनी में लोग कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, या अमेरिका में जो लोग एजुकेशन में बहुत आगे हैं उन्होंने कैसे कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया है, ताकि भाई मैं भी अपने बच्चों को वही चीजें दिखाऊं। कैनवा में चीजें कैसे बनानी है, अट्रैक्टिव चीजें कैसे बनानी है, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे यूज करनी है। तो हम दोनों ऐसे मिलकर काम करते हैं। तो जब हम ऐसे मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं तो हम देखें कितनी जल्दी कितनी वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे।
تو اب یہ دیکھیں جیسے یہ میں نے بیک گراؤنڈ لگایا ہے پیچھے، تو یہ مجھے GPT-5 نے ایک ایڈوائس دیا کہ میں قائد اعظم جو ہمارے قومی لیڈر ہیں ان کی رہائش گاہ جو ہے اس کو ایک طرح پروموٹ کرنا چاہتی تھی. تو دیکھیں میں کتنے پیارے طریقے سے اپنے ملک کو بھی پروموٹ کر رہی ہوں اور ایک کنٹینٹ بھی کریٹ کر رہی ہوں، ایک بات بھی اچھی کر رہی ہوں. جب ہمیں سنیں گے تو ان کے لیے دیکھیں ہم اپنے بلوچستان کو بھی میں پروموٹ کر رہی ہوں. تو میں کتنے زیادہ ٹولز اور چیزیں استعمال کر رہی ہوں، یہ سب ان سب چیزوں کی وجہ سے ہے. وہ مجھے سجیسٹ کرتے رہتے ہیں، میں اپنے آئیڈیاز اپنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دیتی ہوں، ان کو اور اچھا کر کے بتاتے ہیں، میں اس کو اور اچھا کرتی ہوں. تو ہم اس طرح، یہ تو کھیل میں جسے ہمیں کہنا چاہیے، میں یہ چیزیں کریٹ کر پاتی ہوں. اب میرا بچہ ہے وہ 6 سال کا ہے لیکن اس کو کنٹینٹ کریٹ کرنے کا شوق ہے کیونکہ وہ مجھے دیکھتا ہے. تو میں نے اس کو ویلیوز دی، بیٹا آپ نے کنٹینٹ کریٹ کرنا ہے، اچھی باتیں کرنی ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں گیمنگ والے، وہ بیچ میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں ویڈیو کریٹ کرتے ہیں، تو نہیں کرنے چاہیے. اب جب بچے وہی سنیں گے تو جو وہ سنے گا بچہ وہی وہ بولے گا. تو اس چیز کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. تو یہ سب کچھ مجھے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے یہ جو ٹولز ہیں جو کہ فری ہیں، میرے لیے بلیسنگز ہیں، مجھے سکھاتے ہیں، میں ان سے سیکھتی رہتی ہوں. جب بھی ٹائم ہوتا ہے گھر کا کام کر کے فارغ ہوتی ہوں، ان کو لے کے بیٹھ جاتی ہوں، ان سے پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، تو وہ مجھے پڑھاتے رہتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے اور بہت قیمتی چیز ہے یہ، اگر اس کو ہم صحیح استعمال کریں تو. جی بالکل اس کے لیے انسان کو، آدمی کو کریٹو مائنڈ ہونا چاہیے. کوئی بھی جو ہے وہ کنٹینٹ جو ہے وہ کریٹ کر سکتا ہے. جی آئیڈیاز، یعنی آئیڈیاز جو ہیں وہ کنٹینٹ کریشن میں آئیڈیاز کہاں سے آتے ہیں، اور ہر آدمی کنٹینٹ کریٹ کر سکتا ہے. اس کے لیے اس کو کریٹو مائنڈ ہونا چاہیے. جی ایسے کریٹو مائنڈ چاہیے آئیڈیاز کریٹ کرنے کے لیے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. کنٹینٹ کریشن کے لیے جو ہے نا وہ کریٹو مائنڈ ہونا چاہیے. خود سے آئیڈیاز کے لیے کر سکتے ہیں. ہر عام آدمی کے لیے، ہر انسان کے لیے جو کریٹو مائنڈ نہیں ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کنٹینٹ جو ہے وہ کر سکے. جی اچھا، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے اس کنٹینٹ کریشن میں کون کون سے پروجیکٹس ہیں کہ جو آپ کے جن پہ آپ کام کر رہی ہیں، جن پہ آپ نے پلان ہے کہ فیوچر میں ان پروجیکٹس کے اوپر، ان ٹاپکس کے اوپر یعنی کنٹینٹ جو ہے وہ کرنے ہیں. میں جو سب سے پہلے ایجوکیشنل کنٹینٹ کریٹ کرنا چاہتی ہوں، اسپریچول اور موٹیویشنل کنٹینٹ کریٹ کرنا چاہتی ہوں. اور اس کے لیے میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں اپنے کورسز کریٹ کروں اور پھر میں ان کو جو ہے مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر کورسز جو ہیں وہ اپلوڈ ہوتے ہیں. اب تو آن لائن اسکول بلڈ ہو جاتا ہے، اکیڈمی بلڈ ہو جاتی ہے، تو میں ان سب پلیٹ فارم کو یوز کروں اور وہاں پر تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا کنٹینٹ کریٹ کرنا شروع کروں، ان کو اپلوڈ کرنا شروع کروں. اب بھی بیسیکلی جو ہے میں جو ہے وہ ایتھیکل اور موٹیویشنل کنٹینٹ کریٹ کروں گی، کمیونیکیشن والا، نیٹ ورکنگ والا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایجوکیشن والا بھی کروں گی. تو میں مختلف، جس طرح ہمارے ملک میں مختلف ایج گروپس ہیں، ان کو ہر ایج گروپ کو کنٹینٹ کی علیحدہ ریکوائرمنٹ ہے. بچوں کو کسی اور قسم کا کنٹینٹ چاہیے، بڑوں کو کچھ اور قسم کا، ینگسٹرز کو کسی اور قسم کا. تو میں ایج گروپ کے حساب سے جو ہے اس کو بھی کیٹیگرائز کروں گی. ابھی میرا جو کورس ہے ریحان اے آئی ٹیچر انسٹیٹیوٹ میں وہ ختم ہونے والا ہے، 10 دن رہ گئے ہیں. تو جب میرا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد میں اپنی چیزوں کو الائن کروں گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ کام کر کے. پھر انشاءاللہ میرے سوشل میڈیا ہینڈلز آپ سب کے سامنے میں یہاں پہ بتا دیتی ہوں کہ میں فیس بک پر ارم مشتاق ایجوکیشن والی کے نام سے موجود ہوں. اس کے علاوہ میں انسٹاگرام پر بھی ارم مشتاق ایجوکیشن والی کے نام سے موجود ہوں، یہاں پہ میرا کنٹینٹ موجود ہے. لنکڈ ان پر میری پروفائل ہے ارم مشتاق ایجوکیشن والی کے نام سے، آپ وہاں پہ میرا کنٹینٹ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ میرا یوٹیوب چینل ہے ارم ٹی وی، وہاں پر میں کنٹینٹ کب سے کریٹ کر رہی ہوں اور اب میں اس کو اور امپروو کروں گی. تو ابھی میں یہ 4 سوشل میڈیا ہینڈلز کو یوز کروں گی. اس کے ساتھ ساتھ میں پھر اپنے کورسز کریٹ کروں گی اور ڈفرینٹ کولیبریشن کرنے کی کوشش کروں گی، انٹرویوز لینے اور دینے کی کوشش کروں گی. تو اس طرح جو ہے میں ابھی انسپائر ہوں گی لوگوں سے اور دیکھوں گی کہ دوسرے لوگ کس طرح کام کریں جو کہ میرے جیسے ہیں. تو پھر میں ان کے فٹ اسٹیپ پر چل کر ان سے بہتر چیزیں بنانے کی کوشش کروں گی. جی بالکل. اچھا، آپ کا ایک شو بھی ہے ستارے ارم کے ساتھ، اس میں آپ اپنے گیسٹ ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ ان کے انٹرویو کرتی ہیں، مختلف زندگی کی شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو اب تک ایسی کون سی شخصیت ہے جن کے ساتھ آپ نے انٹرویو کیا اور وہ بہت ہی یادگار انٹرویو رہا ہو؟ ہاں بالکل، میں یہ بتاؤں گی. یہاں پر میں نے سر عتیق الرحمان ہے، سر عتیق الرحمان، سر عتیق نیٹ ورکنگ گرو ہیں وہ،
उनके साथ मैंने इंटरव्यू किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को ये देखा है कि वो लोग टाइम को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते, या तो हमें देर वेट करवाते हैं या बात करके आते ही नहीं। अक्सर मैंने इंटरव्यूज में ये देखा है लोग करते हैं ऐसा। लेकिन जो सर अतीक थे उनसे मेरी कमिटमेंट हुई एक दिन पहले, और जो उनका और मेरा टाइम डिसाइड हुआ उससे वो 5 मिनट पहले आ गए। हालांकि बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है वो, और 5 मिनट पहले वो आए और उन्होंने मेरा सारा काम देखा, और जो थोड़ी बहुत मेरी मिस्टेक्स थी उन्होंने वो मेरी दुरुस्त करवाई। फिर उन्होंने मेरे साथ बच्चों की तरह शफकत वाला रवैया रखा, मेरे सवालों के बहुत हम्बल तरीके से जवाब दिए, और जितनी पॉजिटिविटी उन्होंने मुझे दी वो मैंने अभी तक किसी इंटरव्यू में नहीं ली। जैसे उन्होंने मुझे बताया काम करने का कैसे तरीका है, कैसे करना चाहिए, और जितना टाइम मैं चाहती थी उन्होंने मुझे उतना टाइम दिया। बहुत वेल कमिटेड और वेल मैनर्ड, और वाकई ही जो है ना रिस्पेक्टेबल पर्सन है। उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुई, और उसके बाद से मैंने पहले भी कभी टाइम को मैंने जो है आगे पीछे नहीं किया, क्योंकि ये बड़ा हर्टिंग चीज़ होती है। तो और उसके बाद में और कमिटेड हो गई। तो मुझे पता चला कि असल में लोगों की तरक्की का क्या राज है। तो जो लोग चीज़ों को वैल्यू देते हैं अल्लाह ताला उनकी कदर करता है, और अल्लाह ताला वो कहते हैं तो युज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। तो ये सब अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह ताला किस बेस पे लोगों को चुनता है वो उनकी सीरियसनेस और कमिटमेंट की वजह से चुनता है। तो मेरे लिए वो सबसे इंस्पायरिंग इंटरव्यू था अभी तक। जी मेरा आपसे सवाल यह है कि रेहान फाउंडेशन को ज्वाइन आपने कब किया, उसको ज्वाइन करने का ऑन रेहान टीचर ट्रेनिंग करने का ख्याल आपको कैसे आया, और आपने क्यों जरूरी समझा कि ये आपके लिए बहुत जरूरी है? सर रेहान क्योंकि खुद बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और वो गाइड भी करते हैं, और वो लोगों को वक्त की ज़रूरत के मुताबिक गाइड करते हैं। उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो लोगों को मोटिवेट करते हैं पैसा कमाओ। ऐसे जो हमारी कौम की जो हालत है उसको बदलने की तरफ सोचते हैं। तो मुझे वो लोग बड़े इंस्पायरिंग लगते हैं जो कि हमें जो है इस बात का तरीका सिखाएं कि हमने पैसे कमाने कैसे हैं, ना कि ये वो लोग जो कि चैरिटी करते हैं, बल्कि उनसे ये बहुत अच्छे लोग हैं जो लोगों के हाथ में स्किल देते हैं। तो असल में जो हमें ज़रूरत है इस चीज़ की है। तो मैं इनको यूट्यूब पर देखती थी, फिर लिंक्डइन पर देखती थी, वहाँ मैंने इनकी ऐड देखी। तो उन्होंने सोचा बताया कि वो एक इंस्टीट्यूट बना रहे हैं जहाँ पे वो टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे तो वो AI टूल यूज़ कर सके। तो मैंने कहा कि मुझे इसको ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर मैंने वहाँ पर अप्लाई किया, तो फिर मेरी ज्वाइनिंग होगी, और बैच 11 में मैंने इसको ज्वाइन किया। जी ये बताइए मैडम, रेहान फाउंडेशन को ज्वाइन करने के बाद आपका कितना आपने सीखा, और आप क्या समझती हैं कि बाकी जो लोग हैं उनको भी रेहान फाउंडेशन को ज्वाइन करना चाहिए? रेहान फाउंडेशन ने जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया है उसको करने के बाद कितना ये इफेक्टिव होता है, और तक जो है ये मसला रहा आपने? ये बहुत इफेक्टिव है। इसमें हमें सारी नई चीज़ें पता चलती हैं जो कि हमें कहीं और से पता नहीं चलती, और इसमें सबसे अच्छी बात ये 1-to-1 ट्रेनिंग होती है। हमारे टीचर होते हैं जो हमसे हर वक्त हमें पूरी क्लास की तरह होता है। अक्सर जो लोग हैं वो सिखाते हैं, वो कहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे कोर्स पड़ा है जाके देख लो, कोई कहता है कि हमारी वेबसाइट से जाकर पढ़ लो, सब्सक्रिप्शन कर लो। यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमारी पूरी क्लास है। जैसे मेरा बात करें, कनेक्शन बिल्ड होता है, लाइव हम लोग आते हैं, बातचीत करते हैं रोज़। तो इससे लर्निंग जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो अगर हम इसके साथ जो है जितना वो हमें दे रहे हैं उसके साथ हम सिंसियरली उस वहाँ से लें, सीखें, और उसके बाद उसको अप्लाई करें, तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बहुत सारे कोर्सेज खरीद लेते हैं, महंगी फीसें दे देते हैं, और फिर जो है उनको कुछ उसका हासिल वसूल नहीं होता। लोग अपनी वीडियोस का पकड़ा देते हैं, ये जी मेरी वीडियोस का डाटा है, इसको देख लो और इससे सीख लो, तो उसके बाद कोई राब्ता नहीं। तो उससे ये बहुत बेहतर है, एक टीचर क्लासरूम होता है, जूम में सारे स्टूडेंट्स आते हैं, फिर वो हमें सिखाते हैं, मसाइल पूछते हैं, फिर वो हल करवाते हैं। बड़े फैसिलिटेटर होते हैं, गाइड करने वाले होते हैं। तो इस तरह हम एक कम्युनिटी भी देते हैं साथ साथ, वो कि आप देखें कि हमारी ये पूरी कम्युनिटी ऐसे काम करिए, आप भी करें। तो साथ साथ हमें एक काम साथ मिलके करने वाला ग्रुप भी मिल जाता है, और एक हमें जो है ना वो उस्ताद भी मिल जाता है। तो यही चाहिए होता है, और फिर वो हमारे मसाइल भी हल करते हैं। तो अगर हम इससे सीखें जैसे वो सिखा रहे हैं तो फिर ये बहुत बेहतर है। सब लोगों को मेरा ख्याल ये करना चाहिए, तमाम पाकिस्तानियों को। जी ये बताइएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से टीचिंग के शुरू में टीचर्स को सपोर्ट कर रही है, हेल्प कर रही है, और किस तरीके से एक टीचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने के बाद और उससे हेल्प लेने के बाद कितने अच्छे तरीके से वो अपने टीचिंग को अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं? बिल्कुल, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये हमारा काम बहुत जल्दी कर देती है, और हमें बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ देती है। हर
بندے میں सब चीज़ें नहीं होती, लेकिन ये जो मसनूई ज़हानत है ये हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता देती है जो कि हमें खुद पता नहीं होती. तो बहुत सारा ऐसा मटेरियल एजुकेशन जो कि हमें नहीं पता होता, लेकिन ये हमारे लिए ना सिर्फ हमें बताता है बल्कि ये हमें बनाकर भी दे देता है कि ये भी बताओ, ये भी बताओ, ये भी बताओ. अब जैसे इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर आप 10 जोड़े कपड़ों के हाथ से धोने बैठ जाएं तो आप हाथ से धोएंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा, और अगर वही 10 जोड़े आप इकट्ठे एक वॉशिंग मशीन में डाल दें तो वो वॉशिंग मशीन धो भी देगी, फिर सुखा भी देगी, तो सिर्फ उसके बाद आपका कितना काम रह जाएगा, कपड़े डालने का और फिर निकाल के उनको लटकाने का. तो ये मशीन कितने हमारे लिए फायदेमंद है. इस तरह मसनूई ज़हानत भी हमारे लिए इतनी, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एजुकेशन में हमारे लिए इतनी ही फायदेमंद है. ये हमारे अवेलेबल है, काम की स्पीड को बढ़ा देती है, क्रिएटिविटी बढ़ा देती है, ये हमें न्यू आइडियाज देती है, और ये हमें पढ़ाती भी है साथ साथ. और इसके अलावा ये हमें उस लेवल पे पढ़ाती है जो कि दुनिया के टॉप स्कूल्स जहाँ पर काम कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा. तो आप खुद देखें कि भाई अगर हम इसको अच्छी तरह इस्तेमाल करना सीख लें तो हम अपने इलाके में एक गांव में रहकर भी एक टीचर अपने बच्चों को वो एजुकेशन देगा जो कि पीएचडी देता है, अमेरिका में पीएचडी डॉक्टर देता है. तो फिर ये कितनी अहमियत रखती है इसकी तो भी मैं इतनी तारीफ नहीं कर सकती. मुझे लगता है कि भाई यानी कि जितनी तारीफ अभी हम इसकी करें कम है. जी मैडम, लास्ट सवाल रेहान फाउंडेशन, बताइएगा व्यूअर्स को किस तरीके से लोग कर रही है एजुकेशन की फील्ड में, अर्निंग की फील्ड में, अपने सोशल जो है अपने फाइनेंशियल सपोर्ट करने के हाथ से किस तरीके से रेहान फाउंडेशन जो है वो लोगों को एम्पावर कर रही है, इस बारे में थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए. पाकिस्तान में कोई भी ऐसा भी इदारा नहीं है, सिर्फ ये रेहान सर ने जो है ये बनाया इंस्टीट्यूट यहाँ पर, और यहाँ पे देखो सबके लिए खुलेआम दावत है, सब लोग आ सकते हैं, कोई इसमें स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि आपने ये किया हो वो किया हो, इतनी हमें यूं करें वो करें, बल्कि ये हर तरह से कोशिश करते हैं कि लोगों को सीखने में हेल्प करें हर लेवल पर. और ये आपका हाथ पकड़ के आपको जो है चलना सिखाते हैं, बातचीत करना, हर चीज़ सिखाते हैं. तो मैं ये कहूँगी कि ये इनका बहुत बड़ा रोल है, और बल्कि तो पूरी दुनिया में पहला एआई का स्कूल है, अभी तो किसी ने बनाया ही नहीं है. तो इसकी तो फिर हद अभी कोई नहीं है, अभी तो ये स्टार्टअप है. स्टार्टअप में चीज़ें जब बन रही होती हैं उसमें कुछ ना कुछ ऊंच नीच भी होती है, लेकिन वो जो चीज़ें हैं अगर हमारी लीडरशिप अच्छी है तो हम वो चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर लेते हैं. तो ये जो है सबको बहुत हेल्प कर रहा है, और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हेल्प कर रहा है. और आप जिस भी यानी कि जिस भी आप स्फीयर ऑफ लाइफ के पार्ट हैं, आप गरीब हैं, अमीर हैं, जो भी हैं, आप जिस भी मुल्क में हैं, आप जोन सी भी ज़बान बोलते हैं, आप इसमें शामिल हो सकते हैं. तो ये सबके लिए अवेलेबल है. तो मतलब ये ग्लोबल टाइप का स्कूल है, और वाकई ही यहाँ पर जो कनेक्शंस हैं और जो लोग मिलते हैं आपसे बात करते हैं वो ग्लोबल होते हैं. बस हमने ज़रा अपनी जो है ना सिमत ठीक रखनी है, और हमने खुद को पॉजिटिवली बेहतरी की तरफ लेकर जाना है. तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है रेहान फाउंडेशन, और इंशाल्लाह आई होप कि ये और भी इस चीज़ को जो है आहिस्ता आहिस्ता जब लोग और मिलते जाएंगे और बेहतर होता जाएगा. जी बिल्कुल, मैं आपने रेहान फाउंडेशन ऐसे फाउंडेशन है कि पाकिस्तान के हर शोबे से अफराद करने के बाद अपने फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान से गुर्बत के खात्मे और पाकिस्तान से मसाइल को खत्म करने में अपना हिस्सा अदा कर सकते हैं. जी मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया. तो व्यूअर्स, ये हमारी बहुत मेहमान मैडम पीएम मुश्ताक, बातें सुनी, उनके अचीवमेंट्स के बारे में जाना, किस तरीके से उन्होंने कंटेंट क्रिएशन को शुरू किया, किस तरीके से एजुकेशन हासिल की, और किस तरीके से वो जो एम्पावर कर रही हैं और पाकिस्तान से उनके खाते में और फाइनेंशियली और एजुकेशनली लोगों को सपोर्ट करने में अपना किरदार अदा कर रही हैं. जी ये तो हमारी मेहमान की आपको की बात अच्छा लगा होगा, और आपने अपना हौसला दिया होगा, और आपने भी इसको बात करने के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए रख दिया होगा इंशाल्लाह. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. इसलिए नेक्स्ट उसमें हम आपसे हाजिर होंगे. तब तक भी आपसे इजाज़त चाहूँगा. अल्लाह हाफिज़. अपना बहुत सारा पाकिस्तान की